Dear students, I am going to start the third part of lesson agriculture. In this part, we will discuss about the some other crops. Okay, so now the next crop comes maize. You will write the answer in the similar manner that you were writing in the previous video. Type of crop. Now you will write the required geographical condition. Instead of temperature and rainfall, you will write in the next column required geographical condition, next production of areas and next other features. तो 4 कॉलम हो जाएंगे. टाइप ऑफ क्रॉप, रिक्वायर्ड जोग्राफिकल कंडीशन, थर्ड प्रोडक्शन ऑफ एरियाज ऑफ प्रोडक्शन एंड फोर्थ हो जाएगा आपका अदर फीचर्स. ओके, सो मेज मतलब मक्का. अब सब जानते हैं, सीजन आ गया है मक्के का. इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज अ फूड एंड फोडर. इट इज़ अ खरीफ क्रॉप which requires temperature between 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and grows well in the old alluvial soil. So it is used as a food and fodder for both. ठीक है. Now in the column of required geographical condition you will write temperature between 21 to 27 degrees Celsius and grows well in the old alluvial soil. Okay, in some states like Bihar, maize is grown in Rabi season also. It depends on the availability of the required geographical condition and other things. So in Bihar it is best grown in the Rabi season, but mainly it is a kharif crop. Use of modern inputs such as HYB seeds, fertilizers and irrigation have contributed to the increasing production of the maize. Okay, modern farming methods have been adopted to increase the production of the maize. You will write this thing in the other features column. Major maize producing states are Karnataka, Madhya Pradesh, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. ये एरियाज ऑफ प्रोडक्शन आ गए. देखिए मेज कल्टीवेशन की पिक्चर बनी हुई है. नेक्स्ट ये जो मैप बना हुआ है इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीट का, आप देखिएगा इस मैप में कि मेनली वीट का प्रोडक्शन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में होता है. ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे. Next crop comes pulses, means दालें. India is the largest producer as well as the consumer of the pulses in the world. This point will go in the column of other features. We are the largest producer and we are the largest consumer also. जितना प्रोडक्शन हमारे यहाँ दालों का होता है वो सब हम कंज्यूम कर लेते हैं. Even we have to buy the pulses from the other countries also. These are the major sources of protein in a vegetarian diet. Other features, major pulses that are grown in India are तुअर और अरहर दाल, जो मोस्टली हम लोग खाने में यूज़ करते हैं. उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम. ऑल दीज आर मोस्टली वी यूज़ इन आवर ईटिंग हैबिट्स. इनमें से कई सारी दालों को आप लोगों ने खाने के साथ या खाने में खाया होगा. Pulses need less moisture and survive even in dry condition. Geographical condition required क्या है इसके लिए? Pulses needs less moisture and if they can survive even in a dry condition also. तो समझिए आप कि बहुत ज़्यादा इसके लिए रेनफॉल की और बहुत हाई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. किसके लिए? पल्सेस के लिए. Being leguminous crops, all these crops except arhar help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air. All these crops comes under the leguminous crops category. leguminous crops वो होती हैं
जो एयर से नाइट्रोजन को स्टोर करने में मदद करती हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। अरहर को छोड़ के बाकी सारी क्रॉप्स यही काम करती हैं। मतलब ऑल दीज क्रॉप्स आर हेल्पफुल टू इंक्रीज दी सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग द नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। ये पॉइंट भी आपका अदर फीचर्स में जाएगा। तो 3 पॉइंट अदर फीचर्स में डिस्कस कर लिए हमने। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन कंज्यूमर ऑफ पल्सेस, वेजिटेरियन डाइट। नाउ द थर्ड पॉइंट कम्स, इट इंक्रीजेज द सॉइल फर्टिलिटी। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड Karnataka. These are the main areas of production. Possibly, as I know, Madhya Pradesh is the largest producer of the pulses in India. So all these crops we rate till like wheat, rice, millets, pulses. All these were the food crops. Means इन सभी crops का कहीं ना कहीं खाने में हम यूज़ करते हैं. Now the next topic comes food crops other than grains. Okay, so all these crops were the main food crops. Mostly they were used in the daily food habits of the Indian people, like pulses, wheat, rice, ज्वार, बाजरा जो हमने डिस्कस किए, ये एक ग्रेन्स क्रॉप्स थी। मीन्स हमारे डेली खाने में कहीं ना कहीं यूज़ होती थी। अब हम उन फसलों की बात करेंगे जो एज अ ग्रेन नहीं यूज़ होती हैं। ठीक है, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, मतलब वो भी फूड क्रॉप्स तो हैं लेकिन डेली यूज़ में उनको हम खाते नहीं हैं रेगुलरली। सो इन दिस कैटेगरी फर्स्ट क्रॉप विच कम्स इन द कैटेगरी ऑफ अदर देन ग्रेन्स, इट इज़ शुगर कैन, गन्ना। शुगर कैन को हम सब यूज़ करते हैं फसलों। जब कोई त्यौहार वगैरह हमारे यहाँ पर आता है तो गन्नों को हम लोग अपने घरों में पूजा पाठ भी करते हैं और उनको सीजनली लोग उनको कंज्यूम भी करते हैं, बट इट इज़ नॉट रेगुलर। सो दैट्स वाई द टॉपिक इज़ फूड क्रॉप्स अदर देन द ग्रेन्स। जो हमने ग्रेन्स यूज़ किए वो हम लोग मोस्टली डेली खाने में यूज़ करते हैं। शुगर कैन इज़ अ कॉमर्शियल क्रॉप, आप याद रखेंगे। इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स मीन्स ट्रॉपिकल एरिया में भी और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी ये उगाई जा सकती है। नाउ कम्स द जोग्राफिकल कंडीशन। इट ग्रोज वेल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट with a temperature of 21 to 27 degrees Celsius with the annual rainfall between 75 to 100 centimeter. Means it requires high temperature and high rainfall also. ठीक है, ये आप जोग्राफिकल कंडीशन वाले कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट, इरीगेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। सिंपल सी बात है, जहाँ पर कम पानी गिरेगा, कम प्रेसिपिटेशन होगा, वहाँ पर इरीगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। सो इट रिक्वायर्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। इंटेंसिव लेबर is required to do the cultivation of sugar cane. India is the second largest producer of sugar cane only after Brazil. Brazil is the largest producer of the sugar cane and we come second. So ये भी किस में जाएगा, आपके other features में. Okay. Now it is the main source of sugar, good, jaggery, खांडसारी एंड मोलेसेस। शक्कर जो बनती है, गुड़ बनता है, वो सब किससे बनता है, शुगर कैन से बनती है। तो इट प्लेज अ रोल ऑफ रॉ मटेरियल फॉर दी शुगर, जैगरी एंड दी खांडसारी। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। द मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र, पंजाब, बिहार एंड तेलंगाना, हरियाणा। तो ये एरियाज ऑफ प्रोडक्शन वाले कॉलम में आ जाएगा। आई एम रिवाइजिंग इट। हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, हाई रेनफॉल
75 to 100 सेंटीमीटर, ठीक है। टेम्परेचर भी ज़्यादा लगता है और रेनफॉल भी ज़्यादा लगती है इसके लिए। प्लस नेक्स्ट कम्स द पॉइंट अंडर द कैटेगरी ऑफ अदर फीचर्स। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर कैन इज इंडिया आफ्टर ब्राज़ील, and the next point also comes under the category of other features. It is a main source of sugar, jaggery and the khandsari, ये आप ध्यान रखेंगे। और प्रोडक्शन स्टेट हमने डिस्कस की है। ये देखिए शुगर कैन कल्टीवेशन की पिक्चर्स बनी हुई, आप में से कई लोगों ने इनको देखा भी होगा लाइव। नाउ कम द नेक्स्ट क्रॉप्स, ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स, बहुत सारे ईडेबल ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे ऑयल्स का यूज़ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में होता है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऑयल सीड्स in 2015 India was the second largest producer of groundnut in the world after China। ये किस में जाएगा? अदर फीचर्स में। इंडिया इज़ दी सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दी ग्राउंडनट इन दी वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ग्राउंडनट का हम लोग सेकेंड प्रोड्यूसर हैं। इन रेपसीड प्रोडक्शन इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। या आप बिल्कुल सिंपल लिखेंगे अदर फीचर्स में, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन ग्राउंडनट, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन रेपसीड, बस सिंपल लिखना कम पर्याप्त है। नेक्स्ट आप यहाँ से आंसर लिखेंगे, मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमम, टिल, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, linseed and sunflower. Most of these are edible and used as the cooking mediums। जो मैंने पहले भी बताया था आपको, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन, इनमें से बहुत सारों का यूज़ हम अपने डेली कुकिंग में करते हैं और इनका हम यूज़ करते हैं। However, some of these are also used as raw material in production of soap, cosmetics and ointments। जो मैंने बताया आपको, सोप, कॉस्मेटिक्स बनाने में भी इनका यूज़ होता है। ग्राउंड नट के बारे में अलग से एक पैराग्राफ में दिया है। ग्राउंड नट इज़ अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। सोचिए आप, जो ग्राउंड नट है वो आधा हिस्सा रखती है टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन में। मतलब सोयाबीन, मस्टर्ड, कैस्टर, इन सब में आधा हिस्सा ग्राउंड नट का होता है। जितने भी ऑयल सीड इंडिया प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो हाफ ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ग्राउंड नट। गुजरात वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। सेकेंड राजस्थान एंड थर्ड इन तमिलनाडु। दैट वाज द कंडीशन और पोजीशन इन द 2015-16। लिनसीड एंड मस्टर्ड्स आर द रबी क्रॉप्स। सेसमम, जिसको तिल भी कहते हैं, इज़ अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। तो आप ध्यान रखेंगे, ऐसे फसलों के भी नाम आ रहे हैं जो नॉर्थ इंडिया में खरीफ के तौर पे या साउथ इंडिया में खरीफ के तौर पे और नॉर्थ इंडिया में रबी के तौर पे यूज़ होते हैं। तो सेसमम एक खरीफ क्रॉप है नॉर्थ इंडिया में और एक रबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। वैसे ही कैस्टर सीड इज़ आल्सो ग्रोन इन दी बोथ इन रबी एंड खरीफ सीजन। सेसमम को आप याद रखेंगे, स्पेशली ये 1 मार्क में आ सकता है, बिकॉज in the northern part it is considered as a kharif crop, in the southern India it is considered as a rabi crop। ये ध्यान रखेंगे आप। तो ऑयल सीड्स का जहाँ तक सवाल है, रिक्वायर्ड रेनफॉल और टेम्परेचर और जोग्राफिकल कंडीशन, ये कॉलम में नहीं आएगा ये आंसर। आपको डायरेक्ट एक नोट बना करके लिखना पड़ेगा ऑयल सीड्स के बारे में कि इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट, थर्ड ऑफ दी रेप सीड। फिर बताना होगा आपको मेन ऑयल सीड्स के बारे में। नेक्स्ट सम इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड नट जो हमने डिस्कस किया है, इसको आप नोट बनाकर लिखेंगे, हो सकता है शॉर्ट नोट एग्जाम में आ जाए। ओके, नाउ कम दी थर्ड क्रॉप विच इज़ अ बेवरेज क्रॉप। बेवरेज मतलब एक ऐसी क्रॉप जिसको हम पीते हैं, टी। ठीक है, टी इज़ अ बेवरेज क्रॉप। टी कल्टीवेशन, टी इज़ आल्सो एन कॉमर्शियल क्रॉप। जैसे शुगर कैन थी, ऑयल सीड्स थे, वैसे ही टी भी एक कॉमर्शियल क्रॉप है। ध्यान रखेंगे आप, कॉमर्शियल मीन्स
दीज क्रॉप्स आर गॉन फॉर दी मेनली टू अर्न प्रॉफिट, जबकि राइस वीट क्या थी हमारी मेन स्टेपल फूड थी। सो टी कल्टिवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ प्लांटेशन के बारे में। इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश स्टार्टेड द कल्टिवेशन ऑफ द टी इन इंडिया। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाय द इंडियंस। द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। ये यहाँ से आपका आंसर आएगा, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का टी का कई बार आ चुका है। रिक्वायर्ड जोग्राफिकल कंडीशन में क्या आएगा, ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, इंडोर्ड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल, रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, आप केवल एक लाइन इसकी लिखेंगे यहाँ से, ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। आगे हम डिस्कस करने वाले वो लिखेंगे आप। ये देखिए पिक्चर्स बने हुए हैं ग्राउंड नट, सनफ्लावर और मस्टर्ड के, दे आर रेडी टू बी हार्वेस्टेड इन दी फील्ड। ठीक है, कंटिन्यूस ग्राउंड नट, सनफ्लावर और मस्टर्ड 1 2 3। अब यहाँ से आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, रिक्वायर्ड जोग्राफिकल कंडीशन में टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। ओके, सो आप क्या लिखेंगे, रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट मीन्स इट रिक्वायर्स हायर टेम्परेचर एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। यदि पानी वगैरह पाला वगैरह नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो ये फसलें ख़राब हो जाती हैं, इनके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है थ्रू आउट द ईयर। और फ्रीक्वेंट स्वावर्स ओनली distributed over the year ensure continuous growth of tender leaves। frequent showers means थोड़ी थोड़ी जब बौछारें पड़ती हैं तो उनसे जो टेंडर लीव्स होती हैं उनको ग्रोथ करने में मदद मिलती है। ये पॉइंट आंसर में लिखने का नहीं है। अब लिखेंगे आप अदर फीचर्स में, टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री मीन्स इट रिक्वायर्स अ मैनुअल लेबर एंड इट रिक्वायर्स हाई इंटेंसिव लेबर, बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है टी कल्टीवेशन में। आपने देखा होगा कई लोग दार्जिलिंग ऊटी वगैरह यदि घूमने गए होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा लोगों को चाय की पत्तियाँ तोड़ते हुए। ठीक है, तो इसमें बहुत लेबर लगता है। इट रिक्वायर्स अबेंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। ये किस में जाएगा, अदर फीचर्स में भी, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री एंड इट रिक्वायर्स चीप एंड स्किल्ड लेबर। टी इज़ प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। Now comes the areas of production: Assam, hills of Darjeeling and Jaipalguri district of West Bengal, तमिलनाडु, जो मैंने ऊटी का नाम लिया वहाँ तमिलनाडु, केरला, ये इन स्टेट्स में मेनली होती है, असम, तमिलनाडु और केरला में। अपार्ट फ्रॉम दीज हिमाचल, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर आल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द कंट्री। अब आ जाएगा अदर फीचर्स में, in 2015 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टी आफ्टर चाइना। तो मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ आपको इसको। आप लिखेंगे रिक्वायर्ड जोग्राफिकल कंडीशन में ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, देन रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट, देन अदर फीचर्स में आएगा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, और फिर आपके मेन स्टेट्स के नाम आ जाएंगे असम, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, केरला का। ये 4 स्टेट के नाम भी याद रखेंगे तो पर्याप्त है। ये देखिए टी कल्टीवेशन की पिक्चर्स बनी हुई है, जो मैंने आपको वही बताया था कि पत्तियां तोड़ते हुए आपने लोगों को लाइव भी देखा होगा यदि आप इन एरियाज़ में गए होंगे, और ऐसे ही टीवी वगैरह में हमको पिक्चर्स देखने को मिल जाती हैं। तो ये दिखाता है कि बहुत ज़्यादा लेबर इस इंडस्ट्री में लगता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्रॉप कम इन द बेवरेज कैटेगरी, कॉफ़ी। Indian coffee is known in the world for its good quality. The Arabica variety initially brought from Yemen is produced in the country. तो कॉफ़ी की अरेबिका कैटेगरी की कॉफ़ी हमारे यहाँ पर उगाई जाती है। अरेबिका कॉफ़ी जो यमन कंट्री से लाई गई थी इनिशली, लेकिन अब हमारे यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उगती है। दिस वेराइटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बाबा बुर्दन हिल्स of Karnataka, and even today its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu.
कर्नाटका इज द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटका में होती है, फिर केरला और तमिलनाडु में। बिकॉज इन इंडिया कॉफ़ी इज़ कंज्यूम्ड लेस, very less I should say, in compared to the tea. So most of the coffee is exported to the other countries from India. So coffee helps the Indian economy to earn foreign currency. Clear है? ये एक short note कॉफ़ी का लिख लेंगे. Tomorrow we will discuss the next topics. Thank you.